प्रीवियस हमारी जो क्लास थी उसके अंदर हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखे थे, जिनके अंदर मैंने आप लोगों को कुछ स्ट्रक्चर हायरार्ची के बारे में बताया था कि हमारे जो बायोलॉजिकल सिस्टम्स हैं दे आर कंपोज्ड ऑफ सम बेसिक मोनोमर्स एंड दीज मोनोमर्स देन कंबाइन टुगेदर and they result in the formation of all the hydrocarbons or the biomolecules which are present in our system. आपके ये जो फर्स्ट टू लेक्चर्स हैं इनके पहले का तो लिंक आपको मैंने दे दिया था, दूसरे की मैंने वीडियो यहाँ पे अपलोड इसलिए नहीं की क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम नॉट गोइंग टू इंक्लूड दिस पार्ट इनटू योर सेशनल्स एंड क्विजेस एंड एग्जाम्स। ये सिर्फ आपकी बेसिक बायोकेमिस्ट्री की नॉलेज को रिफ्रेश करने के लिए है। जब हम अपनी बायोकेमिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे आई एम गोइंग टू अपलोड द लिंक्स फॉर द लेक्चर्स। वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद कार्बोहाइड्रेट्स इंशाल्लाह, क्योंकि हम पहले कार्बन की कुछ केमिस्ट्री आज पढ़ेंगे, तो the links will be available today. Anyway, तो हमारे पास मैंने आप लोगों को ये बताया था कि we have different levels of hierarchy, जिसके अंदर हमारे पास living organisms हैं, they start with a basic monomeric unit and then they result in the formation of macromolecules or biomolecules. We have different classes of biomolecules जिनके अंदर amino acids हैं, हमारे पास sugars हैं, we have lipids and we have DNA and RNA. इन तमाम का जो बेसिक यूनिट्स हैं इनकी आइडेंटिटी आपको पता होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ प्रोटीन्स वी हैव द बेसिक यूनिट्स जिनको हम अमाइनो एसिड्स कहते हैं, एंड दीज अमाइनो एसिड्स दे आर लिंक्ड विद द हेल्प ऑफ ए पेप्टाइड बॉन्ड। और पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद इनको हम डिटेल में भी पढ़ेंगे, व्हाट इज ए पेप्टाइड बॉन्ड, ऑल दीज थिंग्स हम इनको पढ़ेंगे। पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन के बाद ये मुख्तलिफ किस्म की 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट्स या स्ट्रक्चर्स को अज्यूम करते हैं इन बायोलॉजिकल सिस्टम, लिक्विड सिस्टम्स के अंदर। And depending upon their structure, their three-dimensional nature या three-dimensional structure, इनकी activity define होती है। Then we have smaller monomeric units जिनको हम nucleotides कहते हैं, और nucleotides के अंदर we have this 5 carbon sugar। ये यहाँ पर I'm going to turn on my pointer. Okay. जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि we have this nucleotide unit जिसके अंदर 3 main components हैं। First of all, it has a 5 carbon sugar which is the ribose sugar. Then we have a nitrogenous base, and then we have this phosphate molecule which is linked with the oxygen, and a phosphorus which is linked with one of the carbon of this pentose sugar, and this finally forms a nucleotide molecule. These nucleotide molecules are linked together with each other with the help of a covalent bond, और ये हमारे पास इसकी ये साइड्स बनाते हैं, जबकि इसका जो सेंट्रल रीजन है, ये जो हमारे पास डबल हेलिक्स है, इसका जो सेंट्रल रीजन है, यहाँ पर हमारे पास वीक इंटरेक्शन पाई जाती हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स पाए जाते हैं विच आर प्रेजेंट विद इन दीज नाइट्रोजनस बेसेस। These DNA molecules then come together and with the help of different type of proteins, यहाँ पर आप देखिए कि ये जो येलो कलर का यहाँ पे स्ट्रक्चर मौजूद है, that is a protein, histone protein जिसको कहते हैं, और यहाँ पर जो ब्लू कलर की लाइंस है, these are 2 strands of DNA. They come together resulting in the formation of chromatin, and then they form the chromosomes and they are located inside this nucleus. Then you can see that we have another level of hierarchy in case of the carbohydrates. Carbohydrates के अंदर हमारे पास जो basic unit है, this is most of the time 99% of the time that is a glucose molecule which is a sugar molecule, 6 carbon sugar है, ये linear form के अंदर भी पाई जाती है। We are going to start with carbohydrate इंशाल्लाह, और we are going to look at the chemistry, biochemistry of carbohydrates। तो ये इसका जो circular structure है, ये किस तरह बनता है, how it is changed, it is able to form organic complex compounds, and ये structures की activity के ऊपर कैसे role play करता है, क्या role play करता है, and how we derive energy by the process of glycolysis or oxidative phosphorylation using this simple sugar molecule. So we have simple sugar molecule जो कि glucose molecule है, 6 carbon sugar है, cyclic form के अंदर मौजूद है, और इसके हमारे पास monomeric units combine करते हैं, either forming chains or they can also form branches, और branches की formation के बाद they result in the formation of different type of carbohydrates. For example, अगर ये एक simple chain बनाता है तो it's going to be a different polymer as compared to a branch chain, और ये branch chains अगर linear या vertical या horizontal form के अंदर arranged होती हैं, they result in the formation of either cellulose, amylose or starch and all that stuff. And they have, because they have this stable covalent bond which is the strongest bond, और stable होने की वजह से it is able to provide flexibility as well as strength to the biological system.
दैट्स व्हाई हमारा जो साइटोस्केलेटन है या जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स हैं या फिर जो हमारे पास सेल वॉल है या वो तमाम एलिमेंट जिनके अंदर इलास्टिसिटी मौजूद है, प्रोटेक्शन का जिनका मेन रोल है, they are made up of these sugar molecules, right? So this is a little about the structural hierarchy of the biomolecules. Today we are going to move to the chemical foundations of life. आपके सामने जी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ पीरियोडिक टेबल जो आपने अपनी केमिस्ट्री की क्लास के अंदर, क्लास 9th के अंदर या इवन क्लास 8th के अंदर भी आप लोगों ने इसको स्टडी किया होगा, आपने इसको देखा होगा. दिस इज द पीरियोडिक टेबल. इसके अंदर वो तमाम एलिमेंट्स मौजूद हैं जो कि किसी के जो नेचर के अंदर पाए जाते हैं या फिर जो बाद में सिंथेसाइज किए गए. ठीक है, इन तमाम अगर आप इनको देखें तो इनके अंदर देयर आर टोटल 90 एलिमेंट्स व्हिच आर नेचुरली प्रेजेंट विद इन दी हमारी यूनिवर्स के अंदर. नेचुरली हमारे पास 90 एलिमेंट्स हैं जो कि इस पीरियोडिक टेबल के अंदर हॉरिजॉन्टली जिनको अरेंज किया गया है अकॉर्डिंग टू देयर साइज, अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास एज वेल. राइट, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास क्या होता है? आई होप यू गाइस नो दैट. एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ये इधर टॉप के ऊपर लिखा जाता है, और इसके अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन जो उसका मास होता है जो सेंट्रल न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है वो यहाँ पे बेस पे लिखा जाता है. वी आर मोर कंसर्न विद द एटॉमिक नंबर. दैट्स व्हाई यहाँ पर मैंने जो पीरियोडिक टेबल आपके सामने चूज किया है या जो स्लाइड के अंदर डाला है इसके अंदर आपको एटॉमिक मास नहीं नजर आ रहा. वी आर मोर कंसर्न विद द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. राइट, सो जब हम केमिकल फाउंडेशंस को देखते हैं तो वी आर एक्चुअली लुकिंग एट द केमिकल एंड स्ट्रक्चरल नेचर ऑफ लाइफ. कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज इन एलिमेंट्स के अंदर पाई जाती हैं जिसकी वजह से दीज एलिमेंट्स आर एक्चुअली चोजन फॉर फॉर्मेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल. 90 एलिमेंट्स मैंने आपको बताए, इसमें से सिर्फ 30 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि हमारी लाइफ के लिए इसेंशियल हैं, जिसके बगैर हम सरवाइव नहीं कर सकते. और इन 30 एलिमेंट्स के अंदर हमारे पास फर्दर कुछ एलिमेंट है जिनको यहाँ पर बल्क एलिमेंट और ट्रेस एलिमेंट के नाम से मैंने यहाँ पे लिखा है. बल्क एलिमेंट वो एलिमेंट्स हैं विच आर रिक्वायर्ड इन क्वांटिटीज जैसे कि इन ग्राम्स. राइट, we have hydrogen, nitrogen, and we have potassium, we have calcium, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस. ये तमाम एलिमेंट्स हमारे पास वो एलिमेंट्स हैं जो कि हमें ग्राम्स के अंदर इनकी क्वांटिटी चाहिए हमारी लाइफ को कंटिन्यू करने के लिए, इसको चलाने के लिए. इन तमाम की हमें एक ह्यूज सप्लाई चाहिए इन फॉर्म ऑफ ग्राम्स जो कि हम फूड से लेते हैं, इन्वायरमेंट से लेते हैं, एयर से लेते हैं. राइट, then we have trace elements. For example, we have magnesium, manganese, iron, zinc, and copper and selenium as well. ये तमाम वो elements हैं जो कि trace इस वजह से लिखा है. We require them. They are essential element, but we require them in very little quantity. We require them in little quantity because अब iron की मैं आपको बता दूंगी कि इसकी क्या importance है. If you look at, अगर हम सिर्फ iron की बात करें तो इसकी एक हमारे पास बहुत ही सिंपल सी एग्जांपल है हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल की. हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल को अगर हम देखें, अगर उसका स्ट्रक्चर देखें तो वी हैव एन आयरन व्हिच इज प्रेजेंट सेंट्रली इनसाइड इट, और दिस आयरन हैज दिस एबिलिटी टू एक्सेप्ट ऑक्सीजन. अगर हमारे पास आयरन विच इज जो टोटल हमारा जो हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल है उसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें और उसका हम मास निकालें तो आयरन की जो मास परसेंटेज निकलेगी दिस इज ओनली 0.3% बाय मास. हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर के अंदर वी हैव ए पोरफायरिन रिंग, कार्बन और उन तमाम चीजों का हमारे पास रिंग मौजूद है, लेकिन उसके अंदर जो सेंट्रल आयरन है जिसके बगैर ये हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल बेकार है, और दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लाइक एब्जॉर्बिंग ऑक्सीजन, फॉर कैरिंग ऑक्सीजन एंड लाइक एंड प्रोवाइडिंग टू द सेल्स जहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट है. This is 0.3% by mass, which is very less, but still it is essential, still it is required. So, आपने यहाँ पे ये periodic table आपके लिए क्यों important है? आपको पता होना चाहिए कि हमारे periodic table के अंदर first of all इनके अंदर elements की arrangement किस तरह है. Most of you know that. यहाँ पर according to the number of protons, hydrogen has proton number 1, it has 2, 3, 4 and so on. जितने भी biological molecules हैं they are all very light elements.
लाइट मतलब ये कि उनके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन इज वेरी लेस। हमारे पास सेलेनियम व्हिच इज वन ऑफ द बायोमोलिक्यूल व्हिच इज रिक्वायर्ड। This these two, for example, these are they have a heavy number of protons, but they are still not required in our body most of the time. They can be required in some disease conditions, और ये हमारे पास minute amount में इस वजह से भी required होते हैं क्योंकि our body is able to synthesize them in some way. Otherwise, there are some bacteria which are present in our body and they are living in a symbiotic relationship. वो उनको घर मिला हुआ है रहने के लिए, and they are synthesizing these elements जो कि हमारी बॉडी को बहुत ही कम क्वांटिटी के अंदर चाहिए, right? So as I told you कि हमारा जो सा ये periodic table है, ये मैंने आपके साथ इसलिए शेयर किया है so that you can know कि out of these 90 elements, the 30 elements which are important, these 30 elements do what? These 30 elements are actually making up 99% of the mass of our body. हमारा जो सेल है, हमारी जो बॉडी है, बॉडी की रिक्वायरमेंट है, उसके अंदर 99% ये 30 एलिमेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस की फॉर्म के अंदर हमें हेल्प आउट करते हैं या हमारी हेल्प करते हैं, ठीक है। अब इन जो एलिमेंट है जिनमें मैंने बल्क और ट्रेस एलिमेंट को आइडेंटिफाई कर दिया है, इनके अंदर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट एलिमेंट क्या है? अगर मैं अपने एनिमल सेल, अगर सिंपल एनिमल सेल का मैं ड्राई वेट लूँ तो उसके अंदर जो आधा वेट है वो किस एलिमेंट का बनता है? इट इज ऑलमोस्ट हाफ कार्बन, which means carbon is essentially important for us, right? कार्बन के अलावा we have other elements जैसे कि we have nitrogen, we have oxygen and we have phosphorus as well. Carbon, nitrogen, oxygen and phosphorus, they are along with hydrogen, of course, along with hydrogen, carbon, nitrogen, oxygen, phosphorus, they are playing vital roles in the development of all these monomeric units. आप यहाँ पे देखिए we have the structure of amino acid, we have centrally यहाँ पे हमारे पास कार्बन मौजूद है। अगर हम स्ट्रक्चर देखें अपने शुगर मॉलिक्यूल के अंदर, बेसिक यूनिट शुगर के ग्लूकोज मॉलिक्यूल का देखें तो यहाँ पर दिखाए नहीं गए, बट दीज आर ऑल कार्बन एटम्स व्हिच आर फॉर्मिंग द सेंट्रल चेन, और ये सेंट्रल चेन बाद में एक शुगर मॉलिक्यूल ग्लूकोज की स्ट्रक्चर ले लेती है जब इसके साथ डिफरेंट अदर एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं। If we look at the structure of nucleotides, you see this carbon, central carbon ring. We have this central carbon ring जिसके अंदर नाइट्रोजन और अमाइन जो से हैं या ऑक्सीजन की अगर अटैचमेंट हुई है तो रिजल्ट के अंदर इसने डिफरेंट किस्म का एक न्यूक्लियोटाइड which has entirely different structure and it has entirely different activity and entirely different characteristic as compared to an amino acid or a sugar molecule. So as I told you, carbon is a centrally important molecule, and carbon, it is not only centrally important, it is इसको इतनी इम्पोर्टेंस इस वजह से भी दी गई बिकॉज इट इज ए यूनिक एलिमेंट। इसकी जो केमिस्ट्री है दैट इज यूनिक, और वो यूनिक कैरेक्टरिस्टिक जो इसके पास पाए जाते हैं वो ही रीजन है कि इसको सिलेक्ट किया नेचर ने फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द बेसिक मोनोमर ऑफ ऑल द बायोमोलिक्यूल्स व्हिच आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी, राइट। कार्बन के अंदर क्या खास बात मौजूद है जिसकी वजह से इसको नेचर ने सिलेक्ट किया, या फिर ये हर किस्म के बायोमोलिक्यूल के अंदर इट इज एबल टू फिट इन? वो रीजन थी जी इसकी केमिस्ट्री। यू सी कार्बन का अगर हम मॉलिक्यूलर एटॉमिक नंबर देखें, दिस इज 6, और इसका दिस इज अ लाइट एलिमेंट, और लाइट की जब मैं बात कर रही हूँ मतलब ये कि इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कम है, बाकी भी एलिमेंट जो मैंने आपको बताया इनके नंबर ऑफ प्रोटॉन कम है एक्सेप्ट फॉर सेलेनियम एंड दिस एंड दिस, ठीक है। अब ये इनके अंदर लाइटनेस का मतलब ये है दे आर एबल टू फॉर्म अ बॉन्ड, प्रोटॉन इनके अंदर कम है, दे आर एबल टू फॉर्म अ बॉन्ड, and if they are able to form a bond, the bond that they are going to form is going to be very stable. Lightness का मतलब है they are able to form very stable or strong bonds. Okay, I am going to ask you a few questions before starting into the chemistry of carbon so that I can know कि आप लोगों की basic chemistry कैसी है, ठीक है? You can just raise your hand or you can unmute yourself and then you can answer me the question. Okay, bonds के बारे में आपने पढ़ा है. What is a bond? I am going to briefly explain. Bond is a connection between two elements which can be same, which can be different, right?
अगर आप मुझे फॉलो करें तो एक बच्चा राइट बोल सकता है, ठीक है। बॉन्ड इज एक्चुअली a connection between two elements. These elements can be same or they can be different. जी, Umama, can you hear me, bete? Umama, can you hear me? Please unmute yourself. Yes, ma'am. Okay, good. बेटे बॉन्ड की मुझे टाइप्स बताएंगी आप? कितनी किस्म के बॉन्ड्स आपने पढ़े? Covalent bond, ma'am, ionic bond और ठीक, दो ही मेन टाइप्स हैं। ठीक है जी। आपने आयनिक बॉन्ड पढ़ा है? ओके। आप लोगों ने कोवलेंट बॉन्ड पढ़ा है? आपने कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड पढ़ा है, राइट? आप लोगों ने हाइड्रोजन बॉन्ड पढ़ा है, सुना हुआ ना हाइड्रोजन बॉन्ड के बीच में भी, ठीक है। इसके अलावा आपने कोई बॉन्ड, इसके अलावा आपने किसी बॉन्ड के बारे में सुना है? मैम पोलर बॉन्ड। जी एग्जैक्टली, आप लोगों ने पोलर बॉन्ड्स पढ़े हैं। आप लोगों ने इसके अलावा वैंडरवॉल बॉन्ड्स के बारे में पढ़ा होगा, वैंडरवॉल फोर्सेस भी जिनको कहा जाता है। डाइपोल लंदन डिस्पर्जन। ओके, डाइपोल, देन वी हैव डिस्पर्जन एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हमने पढ़ी है। ओके गुड। अच्छा, ओके, आई एम गोइंग टू आस्क समबडी ए क्वेश्चन। ओके, अतीक और रहमान, अतीक है हमारे पास? Atik is online, but I don't know if he is actually online or not. जी अतीक बेटे, मौजूद हैं आप? आई थिंक अतीक मौजूद नहीं है। ओके, वी हैव हुसैन तजम्मुल। जी तजम्मुल, हुसैन तजम्मुल, आप हैं यहाँ पे मौजूद बेटे? If you have some issue with your mic, you can just write me. Okay, right. इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया जी। हमारे CR जोन से, क्योंकि मुझे सामने ही नजर आ रहे हैं, आप प्लीज अनम्यूट कीजिए अपने माइक को। यस मैम। गुड जी, he is raising his hand. Okay जी बेटे, आपने किसी और बॉन्ड के बारे में सुना है? हुसैन, यू कैन राइट और आप मुझे ऑलरेडी जवाब दें। हाइड्रोजन बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, डाइपोल बॉन्ड, इनके अलावा आपने किसी बॉन्ड के बारे में सुना है? प्राइस बॉन्ड। आपके बेटे वॉल्यूम बहुत कम है। मैम अब ठीक है मैम? जी जी ठीक है, बताइए बताइए। मैम इनके अलावा बस प्राइस बॉन्ड, समद बॉन्ड। हाँ, प्राइस बॉन्ड, समर बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड, अदर बॉन्ड, राइट? देन केमिस्ट्री मैम। ओके, इन तमाम बॉन्ड्स के अंदर प्राइस बॉन्ड, समद बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, मैं इन तमाम को नलिफाई करती हूँ। दे आर नॉट बॉन्ड्स। The only bond which is present in nature, the actual bond, is just a covalent bond. Coordinate covalent bond, double bond, single bond, triple bond, these are all subtypes. लेकिन जो bond है या जो connection है, that is just a covalent bond. Okay? इसके अलावा हाइड्रोजन बॉन्ड, ionic bond, hydrogen bond, ionic bond, van der Waals forces, these are not bonds. Okay, you have to keep this in your mind. एक सिर्फ कोवलेंट बॉन्ड एक बॉन्ड होता है, एक कनेक्शन होता है, इसके अलावा कोई बॉन्ड नहीं है। इवन जेम्स बॉन्ड इज नॉट बॉन्ड। ओके, इट्स जस्ट कोवलेंट बॉन्ड विच इज अ बॉन्ड। कार्बन को नेचर ने इस वजह से सिलेक्ट किया to form the basic structure of all the biomolecules, because this carbon has this ability
to form a covalent bond, which is the most stable bond, the strongest bond, and this carbon is unique because it has the ability to form single, double and triple covalent bond. Okay? कार्बन को नेचर ने इस वजह से सिलेक्ट किया है कि इसके पास ये एबिलिटी मौजूद है कि ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड भी बना लेता है, डबल भी बना लेता है और ट्रिपल भी बना लेता है। यहाँ पर आपके सामने कार्बन का स्ट्रक्चर मौजूद है। दिस इज द कार्बन एटम और इस कार्बन के पास 4 बॉन्ड्स बनाने की एबिलिटी मौजूद है एंड दैट्स व्हाई इट इज एबल टू फॉर्म सिंगल, डबल एंड ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। इसका जो कोवलेंट, अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें, अगर इसने फॉर एग्जांपल बॉन्ड नहीं बनाया हुआ तो इसके पास हमारे पास 4 ऐसे जहां पर ये कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है। अगर हम देखें कि इसने एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाया, फॉर एग्जांपल ये जो कार्बन है इसके पास एबिलिटी है कि ये हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाएगा। ऐसे ही है ना, यहाँ पर अगर मैं हाइड्रोजन लिख दूं, इफ आई टर्न ऑन माय पेन, राइट, यहाँ पर आप देखें इसके स्ट्रक्चर को, वी हैव, अगर इसने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया, ये थर्ड हाइड्रोजन और ये हमारे पास फोर्थ हाइड्रोजन। ये क्या बन गया? ये बन गया जी CH मीथेन। एग्जैक्टली, दिस इज मीथेन। ठीक है, यहाँ पे कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ 4 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाए। दिस इज ए आइडियल सिचुएशन फॉर कार्बन, जिसके अंदर कार्बन जो सा बड़ा खुला डुल्ला, बड़ा खुशबाश रहता। ओके, खुला डुल्ला खुशबाश मतलब ये है कि इसके ये चारों जो सिंगल, डबल और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड की मैं आपको कुछ प्रॉपर्टीज बता देती हूँ। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड के पास की एबिलिटी होती है कि वो फ्लेक्सिबल होता है, वो मूव कर सकता है, वो लॉन्ग होता है लेंथ के अंदर। डबल कोवलेंट बॉन्ड के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है, साइज इसका थोड़ा होता है और ये स्ट्रॉन्ग भी ज्यादा होता है। लेकिन बिकॉज ऑफ दी शॉर्टर साइज, यहाँ पर बाकी मॉलिक्यूल जो साथ में अटैच्ड होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप ये नीचे वाले को देखें, इफ यू लुक एट दिस वन, इस वाले को देखें, यहाँ पर देयर इज अ डबल कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, यहाँ पे मुझे 2 कोवलेंट बॉन्ड, एक ये और एक ये, 2 कोवलेंट बॉन्ड मौजूद हैं, जिसकी वजह से ये वाले जो मॉलिक्यूल A, B, X और Z हैं, they have to stay away from each other। हमारे पास कोई एटम होता है ना, उसका सेंटर के अंदर न्यूक्लियस है, ठीक है, उसके इर्द गिर्द जो से वो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि रोटेट कर रहे हैं, ऐसे ही होता है ना। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन जब रोटेट करते हैं, जब ये मूव करते हैं, सिंस दे आर नेगेटिवली चार्ज्ड, दिस इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, यू नो दैट। ठीक है, these negatively charged when they move around, ये इसके गिर्द मूव करते हैं, they form a electronic cloud, एक नेगेटिव चार्ज वाला ये क्लाउड बनाते हैं। It's very difficult to write with your mouse. Anyway, एक नेगेटिव क्लाउड बनाते हैं, ये इसका नेगेटिव क्लाउड है जी, इसके गिर्द यहाँ पर इसका नेगेटिव क्लाउड है, यहाँ पर इसका नेगेटिव क्लाउड है, यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है या नेगेटिव क्लाउड जिसे हम कहते हैं। Then we have this carbon, this also has a electronic cloud and this also has electronic cloud. जब ये इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड एक दूसरे के साथ टकराते हैं, हम कहते हैं जी यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस हो रही है। These clouds are trying to overlap, but because of the negative charge, ये वाला एलिमेंट इस वाले एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को क्या करेगा? पुश करेगा दूसरी तरफ। जिस डबल बॉन्ड की वजह से ये वाला कार्बन और ये इनके साथ अटैच्ड A, B, X एंड Y, ये तमाम मुश्किल में पड़ जाते हैं, राइट। तो डबल बॉन्ड इज नॉट एज प्रेफरेबल एज कंपेयर टू सिंगल बॉन्ड। ये यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड खुशबाश, यहाँ पर इसका और यहाँ पर हमारे पास इसका। ठीक है, दे आर नॉट ओवरलैपिंग, देयर इज नो स्टेरिक हिंड्रेंस। जितनी ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगी
उतना ज्यादा कोई भी एलिमेंट और उस एलिमेंट का जो स्टेबिलिटी होगी वो ज्यादा होगी। दैट्स व्हाई सिंगल बॉन्ड ज्यादा प्रेफरेबल है नेचर के अंदर, बायोमोलिक्यूल्स के अंदर, एज कंपेयर टू डबल एंड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। So this carbon was actually chosen by the nature because it has the ability to form single, double and triple covalent bond. ये single bond बना सकता है जी हाइड्रोजन के साथ, ये डबल बॉन्ड बना सकता है itself कार्बन के साथ, इसके अलावा ये सिंगल बॉन्ड बना सकता है ऑक्सीजन के साथ भी बना सकता है, नाइट्रोजन के साथ भी बना सकता है, अप टू 4 बॉन्ड ये बहुत स्टेबली बना सकता है। इसकी जो ज्योमेट्री है ये बहुत ही वर्सेटाइल है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर को देखें तो ये जो स्ट्रक्चर, ये जो 4 कोनों वाला स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, दिस इज कॉल्ड ए टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर विद सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। अगर हम इसके अंदर डबल बॉन्ड डाल देंगे तो यहाँ पर ये जो रोटेशन है, या यू कैन सी कि यहाँ पर ये जो रोटेशन का साइन बना हुआ है, दिस बॉन्ड इज रोटेटेबल। जब ये रोटेटेबल होता है तो हमारे पास बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के डिफरेंट कैरेक्टर्स बनाता है। आपने अगर स्टीरियोकेमिस्ट्री थोड़ी सी पढ़ी हो तो आपको पता होगा कि अगर हमारे पास एक बायोमोलिक्यूल है जो कि एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से लिंक्ड है, फॉर एग्जांपल ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, वी हैव दिस कार्बन एंड वी हैव दिस कार्बन एंड दिस हैज फॉर एग्जांपल 4 बॉन्ड बनाता है कार्बन, ठीक है। अगर हमारे पास बायोमोलिक्यूल यहाँ पे नाइट्रोजन फॉर एग्जांपल मौजूद है और नाइट्रोजन यहाँ पर भी मौजूद है, तो हम कहेंगे इसकी कॉन्फ़िगरेशन या इसका जो स्ट्रक्चर है वो है सिस है। अगर ये नीचे आ जाएगा ऑपोजिट डायरेक्शन में तो हम कहेंगे ये ट्रांस है। अब ये जो मूवमेंट की वजह से इसकी जो बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो गई, उसकी स्टडी को हम स्टीरियोकेमिस्ट्री कहते हैं। तो हमारे पास स्टीरियो आइसोमर्स की जो फॉर्मेशन है, आई डोंट नो इफ यू नो दैट और नॉट, हमारे पास 2 तरह के आइसोमर्स पाए जाते हैं इन केस ऑफ कार्बन, डी आइसोमर्स एंड एल आइसोमर्स। स्टीरियोकेमिस्ट्री हम थोड़ी सी जब पढ़ेंगे, जब हम कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ेंगे तो हम थोड़ी सी स्टीरियोकेमिस्ट्री भी पढ़ेंगे कार्बन की। So these carbon bonds have this ability to rotate, ये single covalent bond rotate कर सकता है, जिसकी वजह से बायोमोलिक्यूल्स की different activity होती है। We have for example मैंने आपको बताया कि D isomers होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के और L isomers होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि उनके साथ मौजूद हाइड्रोजन एटम सेंट्रल कार्बन के जो मेन फंक्शनल ग्रुप का कार्बन होता है उसकी लेफ्ट साइड पे मौजूद है या फिर उसकी राइट साइड के ऊपर मौजूद है। ओके, तो और इसी वजह से इनकी जो एक्टिविटी है, डी आइसोमर्स अगर यूकैरियोट्स के अंदर अगर हम देखें क्लासिफिकेशन देखें तो अगर एनिमल्स के अंदर डी आइसोमर्स उनके एक्टिव होते हैं, तो प्लांट्स के अंदर भी वही कार्बोहाइड्रेट मौजूद होते हैं, लेकिन उनका आइसोमर्स एल होते हैं, लेफ्ट साइड के ऊपर उनके हाइड्रोजन की ओरिएंटेशन होती है। इसी तरह यूकैरियोट्स के अंदर भी और प्रोकैरियोट्स के अंदर भी डिफरेंसेस पाए जाते हैं इन टर्म्स ऑफ अमाइनो एसिड। तो अमाइनो एसिड्स का स्ट्रक्चर सेम होता है, वहां पर भी ग्लूकोज का भी स्ट्रक्चर सेम होता है, लेकिन वहां पर उनकी जो आइसोमेरिक फॉर्म होती है वो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड की मोबिलिटी की वजह से, इसकी एबिलिटी टू फ्रीली रोटेट होने की एबिलिटी की वजह से they are performing different activity and they are being recognized by different biomolecules or macromolecules within the biological system, whether वो prokaryotic हो या फिर वो eukaryotic हो, बेशक वो plant हो या animal हो। okay? इसके अलावा ये हमारा जो कार्बन है, इसके पास एक और खास बात ये मौजूद है कि ये एक सिंगल, डबल और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बना देने की वजह से ये चेन्स भी बना सकता है, ये ब्रांचेस भी बना सकता है और ये साइक्लिक स्ट्रक्चर भी बना सकता है। पिछली साइड के ऊपर जाएं अगर, तो आप देखें कि यहाँ पर दिस इज गोइंग टू फॉर्म चेन्स इन केस ऑफ अमाइनो एसिड्स। ठीक है, अमाइनो एसिड के अंदर बेसिक जो यूनिट्स हैं ये एक दूसरे के साथ लिंक्ड होते हैं बाय द हेल्प ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। इसके फॉर्म 5 साइक्लिक स्ट्रक्चर, जैसे कि शुगर्स के अंदर ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन शुगर है और यहाँ पर आप देखेंगे पेंटोज शुगर जो है 5 कार्बन शुगर है, यहाँ पर 6 कार्बन है, यहाँ पर इसके अंदर 2 नाइट्रोजन एडेड है, जिसके रिजल्ट के अंदर ये साइक्लिक स्ट्रक्चर इसने बना दिया। राइट, ओके, तो ये हमारे पास जो वर्सेटैलिटी है ये कार्बन के स्केलेटन के अंदर पाई जाती है। इस कार्बन मॉलिक्यूल के साथ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन हो गया तो ये हाइड्रोकार्बन हो गया। अगर ये हमारे पास हाइड्रोजन की जगह नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया या फास्फोरस हो गया, तो रिजल्ट के अंदर हमारे पास इसकी पूरी केमिस्ट्री चेंज हो जाती है। सो डिपेंडिंग अपॉन द एलिमेंट जो कि इस कार्बन के साथ अटैच्ड है, ये एक डिफरेंट एक्टिविटी परफॉर्म करता है और ये डिफरेंट एक्टिविटी परफॉर्म करने की वजह से इसको एक खास नाम दिया जाता है जिसको हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। यहाँ पर आपके सामने डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल आप देखिए, कार्बन हमारे पास जब हाइड्रोजन के साथ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, यू कैन सी हियर, यहाँ पर ये these are the electrons that can pair
we have a single covalent bond here, then we have a oxygen, it can form like a single covalent bond भी बनाती है, double भी बनाती है, nitrogen can form a single and a double as well. इसके अलावा carbon can form a double and a triple covalent bond with its own self. यहाँ पर हमारे पास different biomolecules मौजूद हैं. You see central carbon है और इस central carbon के साथ अगर सिर्फ जो सी है वो hydrogen मौजूद होती तो it was methane. अगर यहाँ पे कोई एक R ग्रुप, R कैन बी एनी ग्रुप, ये मौजूद है, इट्स गोइंग टू फॉर्म अ मिथाइल ग्रुप. अगर यहाँ पर इफ वी हैव 2 कार्बन्स, ये जो इसके अंदर हाइलाइटेड रीजन है, दिस इज फॉर्मिंग, ये जो हाइलाइटेड रीजन है, R मींस इट कैन बी एनी ग्रुप, राइट? इट कैन बी हाइड्रोजन, इट कैन बी मीथेन, CH3 ग्रुप भी हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग, बट दिस इज द इथाइल ग्रुप. Then we have these double bonded carbon in the form of a ring, और ये हमारे पास एक फिनाइल ग्रुप बना रहा है. Similarly, we have this carbonyl group जो कि हमारे लिए सबसे ज्यादा important होना है. So ये आपको पता होना चाहिए. This is important. Then we have carbonyl के आगे हमारे पास 2 सब क्लासेस हैं. Either it can be aldehydic और it can be ketonic. आप अमाइनो एसिड्स के अंदर, प्रोटीन्स के अंदर, इवन जो मेटाबॉलिज्म का हम जो पढ़ेंगे उसके अंदर भी यू आर गोइंग टू लुक एट दी कीटोनिक एंड एल्डिहाइडिक ग्रुप. आपको ये ग्रुप याद होने चाहिए. Then we have ether. Ether is not very exclusively important. Then we have ester bond. That's important. आपको इनका functional group जो है बेटे ये पता होना चाहिए. Then we have acetyl anhydride amino group, which is also important. This is this and this. These are very important. Thioester disulfide is important with respect to proteins. Sulfhydryl group is also important with respect to amino acids and protein. Then imidazole and guanidinium functional group, these are like not that important, लेकिन हमने बायोकेमिस्ट्री के अंदर आपको इन फंक्शनल ग्रुप्स का पता होना चाहिए बेटे. You have to remember these, but जो आपको हर हाल के अंदर पता होने चाहिए, these are the aldehydic, ketonic, amino, disulfide and sulfhydryl bonds. Okay, you are supposed to like remember them very well. अब ये जो हमारे पास जो बायोमोलिक्यूल्स हैं, they are actually formed when the central carbon atom, ये जो हमारे पास सेंटर में इसके अंदर कार्बन मौजूद है, ये जब इन डिफरेंट ग्रुप्स के साथ, ये देखिए यहाँ पे कार्बोनाइल ग्रुप, इफ यू कैन सी यहाँ पर वी हैव दिस सेंट्रल कार्बन, ये आपके पास सेंट्रल कार्बन है, इसके साथ हमारे पास एक कार्बोनाइल ग्रुप मौजूद है. ठीक है, ये फंक्शनल ग्रुप है जो कि इसको कार्बोनाइल की प्रॉपर्टी देता है. यहाँ पे मैंने एग्जांपल अमाइनो एसिड्स की डाली है. वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद इंशाल्लाह विद कार्बोहाइड्रेट्स, बट स्टिल कार्बन यहाँ पे देखिए इसके साथ एक कार्बोनाइल ग्रुप मौजूद है. इट्स गोइंग टू गिव इट सम डिफरेंट प्रॉपर्टीज, बट यू सी हियर कि यहाँ पर एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी मौजूद है. यू सी दिस OH, हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी मौजूद है. देन यू सी दैट देयर इज आल्सो एन अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट हियर. Of all these, तो देखिए अगर कार्बोनाइल होता तो it would have been an acid. अगर ये सिर्फ यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता, it would have been just an alcohol. अगर यहाँ पर हमारे पास ये सिर्फ अमाइनो ग्रुप मौजूद होता, it would have been, this carbon would have been an amine. यहाँ पे देखिए we have, अगर ये सिर्फ कार्बोनाइल होता, एसिड होता, अल्कोहल होता या एक अमीन होता, हम कहते हैं जिसके अंदर ये फंक्शनल ग्रुप मौजूद है, this is a बायोमोलिक्यूल. हाइड्रोकार्बन है, बायोमोलिक्यूल है. लेकिन अगर हमारे पास एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप एक कार्बन के साथ अटैच हो जाए तो उसको हम मल्टीपल फंक्शन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. इनको हम पॉली बायोमोलिक्यूल्स भी कह सकते हैं क्योंकि दे हैव मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप, राइट? एंड दीज मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप गिव अ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक टू दैट मॉलिक्यूल. मतलब ये बायोमोलिक्यूल्स मैंने आपको बताया कि हमारी नेचर ने हमें सिर्फ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन दिए थे, ठीक है, और उनसे हमने इतने कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म और डिफरेंट किस्म के बायोमोलिक्यूल्स बना लिए. हमारा अगर हम सेल की बात करें ना तो हमारे एक सेल के अंदर ऑलमोस्ट सिर्फ 100 से 100 ऑलमोस्ट 100 जो है ना इसके अंदर पाए जाते होंगे बायोमोलिक्यूल. डिफरेंट तरह के जो बायोमोलिक्यूल की मैं बात करूँ सिर्फ 100 पाए जाते होंगे एक सेल के साइटोसोल के अंदर. लेकिन यू सी कि सिर्फ 100 जो बेसिक एलिमेंट्स उनसे हैं वो तो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन है, लेकिन इससे 100 डिफरेंट किस्म के बायोमोलिक्यूल कैसे बन गए? अटैचमेंट ऑफ द डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स. ओके, बाय द अटैचमेंट ऑफ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स डिफरेंट बायोमोलिक्यूल्स बने. यहाँ पर आपके पास एग्जांपल है जी अमाइनो एसिड्स की, व्हिच आर द बेसिक यूनिट ऑफ प्रोटीन. और अमाइनो एसिड्स के अंदर देखें यू हैव दिस अल्कोहल, यू हैव दिस अमाइनो ग्रुप एंड यू हैव दिस कार्बोक्सिलिक ग्रुप. देन आप यहाँ पर देखिए वी हैव दिस, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम आ जाते हैं, वी हैव दिस फंक्शनल ग्रुप
then we have this functional group, and then we have this functional group. Okay, you know this is amino, this is carboxylic, and this is this one. We have this phenyl group, which is इसके अंदर आप देखिए carbons हैं which are attached with double bonds, right? तो यहाँ पर हमारे पास आप देखिए कि we have double bonds and the carbons we are linked together. We have this phenyl group along with an alcohol here. इसकी वजह से you see that these functional groups are giving a versatility to this carbon जिसकी हमने बात की, इसको choose किया है nature ने only because of this, because it has this ability to form the bonds, and these bonds are then linked to different type of biomolecules or functional groups that lead to formation of a wide variety or a class of different biological molecules which have entirely different biochemistry, and they have entirely different activity and structure to